हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया अबाउट द रोल ऑफ डिफरेंट गोनेडोट्रोपिन्स, nothing but the FSH and the LH, along with the gonadal hormones, especially which are secreted by the gonads, both testosterone, that is the androgen in case of the human male, estrogen and the progesterone, as well as oxytocin, inhibin, relaxin. These are nothing but the in case of the female. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. After the study of such gonadotropins and the gonadal hormones in case of the human female, now we are moving towards the detail about the human female reproductive system. Okay, तो हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Now you know the both male and the female reproductive system, they are developed for which purpose? हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते समय क्या मेजर फंक्शन स्टडी किए थे? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डेवलप्ड फॉर मेनली टू पर्पस: प्रोडक्शन ऑफ द मेल गमीट्स, नथिंग बट द स्पर्म्स. That process is called as the spermatogenesis. And second is the transfer of the sperms in the female genital tract for the further process like fertilization and the development of the young one. तो sperm production और sperm का transfer in the female genital tract by the act of coitus or the mating. These are the two major events or the purpose shown by means of a human male reproductive system. अभी human female reproductive system के क्या फंक्शन है? Why it is developed? तो पहला है human male से sperm को कलेक्ट करना, receiving the sperms, अपने खुद के female gametes जनरेट करना, डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, nothing but the eggs or the ova, by the process of oogenesis. एरिया प्रोवाइड करना ताकि जहां पर दोनों मेल और फीमेल गमीट्स का यूनियन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए. फर्टिलाइजेशन के बाद उनका डेवलपमेंट हो तो अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग द स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन टिल बर्थ. एंड इवन दो आफ्टर द बर्थ अर्ली नरिशमेंट इज गिवन by the secretion of the milk through the mammary glands. So these are the major events or the major purpose shown by the or major functions shown by the human female reproductive system. तो अभी जैसे हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी. यहां पर भी हम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से? सच टू दी सेक्स ऑर्गन्स विच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी गमीट प्रोडक्शन. एंड हियर दी इन केस ऑफ द फीमेल दैट गमीट प्रोडक्शन इज नथिंग बट दी egg production, ova production means process of oogenesis. So here in the process of oogenesis, which organs get involved? Spermatogenesis में क्या थे? Paired testes थे. यहां पर क्या है? Paired ovaries. ओके, जिनका काम कौन सा है? एग प्रोड्यूस करना, ओवा प्रोड्यूस करना, साथ में कुछ गोनेडल हार्मोन्स भी सिक्रेट करना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन. ओके, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलैक्सिन इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, अभी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे इस मामले में. तो सबसे पहले
human female gonads or the primary sex organs and nothing but the paired ovaries. Then the fallopian tubes, secondary sex organs now, opens into the uterus. Uterus shows the upper dome shaped region, nothing but the fundus, elongated body, tapering lower neck region. Cervix, which opens in the external copulatory duct, इसको हम बोलेंगे copulatory canal, as well as the lower birth canal, nothing but the vagina, which opens externally by means of its separate opening in the external genitalia of the female, nothing but the vulva, along with the associated glands like the Bartholin glands, along with the mammary glands, for the feeding purpose, for the nourishing of that newborn baby. तो इन दिस वे सबसे पहले आज हमको ओवरीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है. पेयर्ड ओवरीज, नथिंग बट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, gonads of the female, which involve in the female gamete production, nothing but the egg production, वहाँ production nothing but the oogenesis. तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं लोकेशन कहां पर है, वेयर दी ओवरीज आर लोकेटेड. हमने टेस्टिस के बारे में क्या बोला था, दे आर डेवलप इंट्राएब्डोमिनली बट लेटर ऑन दे डिसेंड एंड अल्टीमेटली प्लेस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ओके, टू मिनिमाइज द टेम्परेचर फॉर अ बेटर स्पर्मेटोजेनेसिस, not only for the production of the sperms, for their maturation also. Okay. लेकिन यहां पर ह्यूमन फीमेल में ओवरीज आर परमानेंटली इंट्रा एब्डोमिनल. ओके, यहां पर टेम्परेचर इश्यू नहीं है, एक प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कोई इश्यू नहीं है. यहां पर मीन्स एक प्रोडक्शन, दैट मीन्स oogenesis occurs at the normal body temperature 36 और 37 डिग्री सेल्सियस, जो इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर है. ओके, तो यहां पर टेम्परेचर इश्यू नहीं. अभी ये दोनों ओवरीज कहां पर हैं, हम जानते हैं हमारी बॉडी कैविटीज, पर्टिकुलर एब्डोमिनल रीजन. तो एब्डोमिनल कैविटी को हम अपर एब्डोमिनल कैविटी एंड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी. अपर एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड एज द लंबर कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड एज द पेल्विक और द सैक्रल कैविटी. ओके, तो जहां पर लंबर कैविटी और सैक्रल कैविटी रफली हम सेपरेट करते हैं दैट रीजन. ओके, डॉर्सली पीछे, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स, द ओवरीज आर प्लेस्ड exactly at the junction of the upper and the lower abdominal cavity. तो पेयर्ड ओवरीज है, एक राइट साइड में, दूसरी लेफ्ट साइड में, ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ऑन विच साइड, डॉर्सली पीछे. ओके, नो सच ओवरीज विच आर वेरी स्मॉल साइज. इसके डायमेंशन इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. These are the little almond shape, बादाम के आकार के होते हैं, almond shape के होते हैं. And these are held in position by means of a various attachments. अपने पोजीशन पर उसको रखा गया है डिफरेंट अटैचमेंट के द्वारा. अभी इन अटैचमेंट्स के बारे में हम देखते हैं. ओके, वैसे तो fallopian tubes, uterus, they are completely get connected with the internal body linings, nothing but the peritoneum, by means of a big, large, elongated, flap-like ligament called as the broad ligament. Okay? अभी इन ओवरीज को पीछे यानी डॉर्सल बॉडी वॉल से, डॉर्सल पेरिटोनियल लाइनिंग से, क्योंकि हमारी बॉडी लाइनिंग इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज द पेरिटोनियम. हियर पीछे हर एक ओवरी कनेक्ट है पेरिटोनियम से by means of that double fold of the peritoneum, and that double fold of the peritoneum is called as the mesovarium. Mesovarium. इसलिए spermatic cord in case of the human male, जहां पर टेस्टिस को हेल्ड करते हैं, ओके, इनको हम बोलते हैं मेसोर्चियम. यहां पर हम बोलते हैं मेसोवेरियम. मींस डॉर्सली both the ovaries get connected with the peritoneal lining by double fold of that peritoneum called as the mesovarium.
इंटरनली टुवर्ड्स द यूटेरस ऑल्सो, यूटेरस की तरफ फिर से कनेक्टेड है by means of another ligament, and these are the utero-ovarian ligaments which is a part of the broad ligament जो completely lengthwise होते हैं, ओके, उनका ही पार्ट है ये यूटेरो-ओवेरियन लिगामेंट्स। तो पीछे डॉर्सल साइड में मेसोवेरियम के द्वारा यूटेरस के साथ, वॉल ऑफ यूटेरस के साथ कनेक्ट होते हैं, दैट इज यूटेरो-ओवेरियन लिगामेंट के साथ which is a part of the broad ligament, और लेटरल वॉल के साथ, लेटरल पेरिटोनियम के साथ कनेक्ट होते हैं बाय मींस ऑफ ए सस्पेंसरी लिगामेंट। दीज आर दी सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेटरल। तो लेटरल साइड में सस्पेंसरी लिगामेंट है, इनर साइड में यूटेरस के साथ कनेक्ट हुए हैं बाय मींस ऑफ दैट यूटेरो-ओवेरियन लिगामेंट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, और पीछे डॉर्सली डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मींस मेसोवेरियम के साथ कनेक्टेड है या उनके द्वारा कनेक्टेड है। Means by means of these three connections ovaries are placed in their position, okay, तो ये हुआ लोकेशन ovaries का, अटैचमेंट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। When you observe the surface of the ovary, it is not smooth, it shows the elevations and the depressions, because here in this ovary we can observe the development of the various follicles at different stages, तो पुश करते हैं वॉल ऑफ ओवरी को, एंड देयरफॉर द सरफेस ऑफ द ओवरी इज क्वाइट इररेगुलर, ओके। अभी इस लोकेशन के बाद हमको तो आज कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट करना है ओवरीज पर ही, ओके। तो हम देखते हैं सेक्शन ऑफ द ओवरी, हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी। इन द हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी you can observe the region through which there is an entry of the or there is a blood supply, जहां से ओवरी को ब्लड सप्लाई होता है, जहां से ब्लड वेसल्स एंट्री करती है, जहां से एग्जिट भी होती है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व फाइबर्स, उस रीजन को बोलते हैं हम हाइलम। दैट रीजन इज कॉल्ड एज द हाइलम, द प्लेस ऑफ द ओवरी through which there is an entry and the exit of the blood vessels, nerve fibers, lymphatic vessels. That region is called as the hilum. Basically, the entire wall of the ovary is formed by means of a cuboidal epithelium internally. Cuboidal epithelium. These cuboidal epithelium, previously called as a germinal epithelium, इनको पहले जर्मानल इपिथेलियम बोला जाता था। आज भी हमारे बुक्स में वही टर्मिनोलॉजी यूज होती है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। बाद में पता चला कि एक्चुअली जर्म सेल्स किसको बोलेंगे हम, जिनसे गमीट प्रोड्यूस हो रहे या जनरेट हो रहे। दीज जर्मानल इपिथेलियल सेल्स नेवर इन्वॉल्व इन दी गमीट प्रोडक्शन और द एग प्रोडक्शन। नो, यू नो इट वेरी वेल। अभी हमको पता चल गया है कि एक्चुअली जर्मानल एपिथेलियल सेल्स एक गमीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। सो सिंपली नाउ दीज आर कॉल्ड एज द सरफेस एपिथेलियम नाउडेज। उनको क्या बोला जाता है, सरफेस एपिथेलियम। मैंने यहां पर लिखा है दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द गमीट्स, सो दीज आर कॉल्ड एज नाउ सरफेस एपिथेलियम एंड नॉट द जर्मानल एपिथेलियम। Just below the such surface epithelium, we can observe the layer of the fibrous, white fibrous, dense fibrous connective tissue, and these internal supporting of the layer of that dense fibrous connective tissue, okay, is called as the tunica albuginea। ये टर्मिनोलॉजी हमने टेस्टिस में भी यूज की है। The fibrous connective tissue covering of the testis is the actual tunica albuginea, जो बाद में सेप्टा जनरेट प्रोड्यूस करती है इंटरनली और छोटे छोटे लोब्यूल्स में टेस्टिस को डिवाइड करता है। यहां पर एक कंटिन्यूअस लेयर है जस्ट बिलो दी सच सरफेस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ओके, आप लेबल कर सकते हो उसको जर्मानल एपिथेलियम भी, लेकिन बेसिकली जर्मानल एपिथेलियम नहीं है। ओके, क्यों बताता हूं मैं आपको। देन द इंटरनल रीजन ऑफ द
internal region of the ovary. All together can be called as stroma portion. जिस स्ट्रोमा को फिर आउटर और सेंट्रल यानी इनर जोन में डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा क्लियर कट कुछ डिवीजन नहीं है, ओके। लेकिन हम डिवीजन या डिवाइड इसको किस तरीके से करते हैं? द आउटर रीजन वेयर द एक्चुअल यू कैन ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स in different stages of the development of that follicles, that region, that outer zone of the ovary, जहां पर हम follicles को उनके different stages में देख सकते हैं, that region is called as the cortex region. And the comparatively dense connective tissue zone, central zone, it is called as the medulla zone. Okay, so internally such ovary can be divided into the two zones, that is outer zone cortex and the inner is nothing but the medulla. And in this outer cortex zone you can observe the various follicles in a different stages of development. Okay, now अभी इस ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते समय हमको पढ़ना है दो मेजर इवेंट्स को. One is the folliculogenesis and another is the oogenesis. Folliculogenesis and the oogenesis. तो अभी हमने अब तक क्या स्टडी किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी गोनैड्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल गोनैड कौन से है? पेड ओवरीज. उनका लोकेशन हमने स्टडी किया एग्जैक्टली एट द बॉर्डर ऑफ द अपर एब्डोमिनल कैविटी एंड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल. फिर हमने अटैचमेंट स्टडी किया, डॉर्सल पेरिटोनियम से कनेक्टेड होते हैं मेसोवेरियम के द्वारा, यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा, जिनको हम ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट बोलते हैं. लैटरल पेरिटोनियल से कनेक्ट होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा, आलमंड शेप के हैं. साथ में यहाँ पर रिलीज ऊहा को कलेक्ट करने वाले फैलोपियन ट्यूब्स हैं. देन द यूटेरस and then the vagina, external genitalia nothing but the vulva along with the mammary gland. These are the different organs involved in the female reproductive. बाद में हम आए इंटरनल स्ट्रक्चर पर. इंटरनली हम जब ओवरी को कट करते हैं उसका सेक्शन अगर ऑब्जर्व करते हैं, that wall of the ovary is formed by means of that cuboidal epithelium, जिसको पहले जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता था लेकिन अभी सरफेस एपिथेलियम बोला जाता है. उसको इंटरनली सपोर्ट करता है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, दैट इज अ ट्यूनिका अल्बुजिनिया. बाद में इंटरनल एंटायर कंटेंट्स को इन जनरल हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसको दो रीजन में डिवाइड किया जाता है. आउटर रीजन इज अ कॉर्टेक्स, जहां पर हम स्टेजेस देख सकते हैं डिफरेंट फॉलिकल्स की, ओके, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट. एंड देन द सेंट्रल जोन इज नथिंग बट द मेडुला. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. साथ में ऐसा रीजन ओवरी का जहां से एंट्री और एग्जिट होता है ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, लिम्फेटिक वेसल्स, इन सभी का, उस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम. ओके, नाउ अभी हमको कंसंट्रेट करना है मेनली फॉलिकुलोजेनेसिस एंड द oogenesis, और इस पर अच्छी तरह से कंसंट्रेट कीजिए, इसको समझिए ठीक से. ओके, अभी एक्चुअली व्हाट इज द फॉलिकुलोजेनेसिस? What is the meaning of follicle? Follicle means little bag or the little sac like structure. Little bag or the little sac containing developing oocyte, developing egg, surrounded by means of a layers of the granulosa cells. ऐसा स्ट्रक्चर जो लिटिल बैग जैसा है, लिटिल सैक जैसा है, जिसके अंदर क्या है? डेवलपिंग स्टेज में एग है, oocyte है, मे बी प्राइमरी oocyte, मे बी सेकेंडरी oocyte, ओके, एंड गेट सराउंडेड बाय मींस ऑफ ए multiple layers of the granulosa cells. Okay, such structure is called as a follicle, and development or the process of formation of such follicle inside the ovary is called as the folliculogenesis. ओके, तो फॉलिकुलोजेनेसिस जब होगा तभी ही oogenesis भी होगा,
क्योंकि फॉलिकल के अंदर ही तो एक डेवलप हो रहा। ओके, नाउ हियर, तो अभी अगर हम ह्यूमन मेल के साथ कंपेयर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम ह्यूमन मेल के साथ कंपेयर करते हैं, इन केस ऑफ द ह्यूमन मेल, this sperm production started whenever the male person attained the sexual maturity, when there is a onset of puberty, when there is secretions of the gonadotropin releasing hormones from the hypothalamus, and then FSH LH get released from the pitta gland, adenohypophysis, anterior pituitary. Then the actual process of spermatogenesis started, which may be continued till death in case of the human male. डिपेंड करता है उस फीमेल, दैट इज अ मेल पर्सन के डाइट और हेल्थ स्टेटस पर। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, यहां पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। इन केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल, द एक्चुअल द जर्मिनल सेल्स which are involved in the oogenesis, these are not actually the part of the ovary. These are actually migrated from the yolk sac through the bloodstream के द्वारा ये सेल्स, जर्मिनल सेल्स माइग्रेट होते हैं yolk sac से। ओके, ये हमको एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करना है, व्हाट इज दैट yolk sac। तो yolk sac में जो जर्मिनल सेल्स है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ माइग्रेट होते हैं एंड दे एंटर इन द ओरी, एंड दैट ओरी इन केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल एम्ब्रियो, डेवलपिंग फिटस, डेवलपिंग फीमेल बेबी इन द यूटेरस ऑफ मदर, मीन्स एम्ब्रियोनिक लाइफ। उस एम्ब्रियोनिक लाइफ के समय ये माइग्रेशन होता है जर्मिनल सेल्स का। लेकिन ओवरीज कब डेवलप होती है? इस फीमेल ग्रोइंग एम्ब्रियो में ओवरीज का डेवलपमेंट होता है नियर अबाउट 11 to 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जैसे स्टार्ट हो गई। ओके, इंप्लांटेशन हो गया, अर्ली एम्ब्रियो फिक्स हो गया यूट्राइन वॉल में, प्लासेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, प्रेगनेंसी इज मेंटेन। उसके 11 to 12th वीक के बाद या उसी दरमियान उस डेवलपिंग फीमेल बेबी की बॉडी में ओवरीज का डेवलपमेंट होता है और उसी समय इन जर्मिनल सेल्स का माइग्रेशन होता है उन ओवरीज में, और तभी से oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मींस दैट oogenesis इन केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल स्टार्टेड राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा है cells of the endoderm of the yolk sac migrated and divide mitotically। वो माइग्रेट हो गए ओवरीज में, they divide mitotically producing the multiple quantity of the cells and arrange at that time, okay, in the Pompe groups or the cord-like structures, and these cords are found to be connected with that surface epithelium also, उनको एक कॉर्ड भी बोला जाता है। and when there is a group wise arrangement of such germinal cells, these are called as egg nest, उनको क्या बोलते हैं हम? एग नेस्ट। तो एक कॉर्ड एंड एग नेस्ट जो मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन हमारे बुक में उसका रेफरेंस दिया है। ओके, देख, तो सेल्स ऑफ एंडोडर्म ऑफ द yolk sac माइग्रेटेड एंड डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल फिटस, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल फिटस। फीमेल बेबी का जब डेवलपमेंट हो रहा, ओवरी डेवलप हो गई, उसी समय ओवरीज में yolk sac से ये जर्मिनल सेल्स का माइग्रेशन होगा एंड दे एंटर इन दी ओवरीज एंड मल्टीप्लाइड इन दी ओवरीज टू फॉर्म दी एग कॉर्ड एंड दी एग नेस्ट। ओके, देन इसका मतलब क्या? ओरिजिन ऑफ जर्म सेल इज नॉट गोनेडल। इसका मतलब जर्म सेल्स गोनेड में ओरिजिनेट नहीं हुए, these are originated in the yolk sac and then migrated in the gonad, nothing but the ovaries। तो origin of such germ cell is a extragonadal, ये ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। origin of the germ cell is a extragonadal। okay, now here when such
germ cells multiplied. Now these multiplied germ cells can be called as the egg mother cells. उनको हम बोल सकते हैं egg mother cells. And such egg mother cells are nothing but the oogonia. These are the oogonia which are diploid in nature. Okay. And such oogonia, they are arranged in the proper groups called as egg nest, which shows the further development right from the embryonic life and develops into the follicle, and each follicle containing the one egg. तो हर एक फॉलिकल में एक एग प्रोड्यूस होगा. ओके, देख, मीन्स प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्टेड राइट फ्रॉम द इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ द फीमेल फिटस और फीमेल बेबी. जब वो अपने मदर के यूट्रस में है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तभी से oogenesis, folliculogenesis स्टार्ट हो गया. इट कंटिन्यू टिल बर्थ. बर्थ के बाद फिर से वो स्टॉप हो जाता है. एंड व्हेनेवर आफ्टर द बर्थ, व्हेन फीमेल अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द मेनार्क. ओके, onset of puberty. Again that process of folliculogenesis as well as the oogenesis again started. And you know, in case of the female, there is a female reproductive cycle of the every 28 days. And during every cycle, one egg, one follicle is developed. वैसे तो बहुत सारे फॉलिकल डेवलप होते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो फाइनली एक प्रोड्यूस करता है, बाकी के डिसऑर्गेनाइज होते हैं. मींस राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लाइफ फॉलिकल्स बनते भी हैं और फॉलिकल डिसऑर्गेनाइज भी होते हैं, डिजनरेट भी होते हैं, मरते भी हैं. ओके, एंड अगेन राइट फ्रॉम द मेनार्ज, दैट अल्टीमेटली oogenesis started, folliculogenesis started, and it get continue at the age of 45, in average 45 years. Then all such follicles get exhausted and the egg production stops in case of the female, and that stage is called as the menopause. Okay, ज्याला आपण मराठीमध्ये रजोनिवृत्ती असं म्हणतो. तो राइट फ्रॉम द मेनार्ज अप टू द मेनोपॉज, this is the duration during which human female is fertile and producing the female gamete, nothing but the eggs or the ova, in a month-wise pattern. Okay, and therefore it is said to the right from the menarche up to the menopause. Okay, right from the onset of puberty up to the stoppage of that puberty. That duration is called as the sexual life or the reproductive life or the reproductive period of the female. Means in case of the female, that egg production is not continuous, it is a discontinuous process. Right? That is started right from the embryonic life, then stop after the birth, again start at the time of the puberty, and again stop at the menopause. Okay, it is a discontinuous process. So in this way, and during this reproductive life, in average 400 to 450, 400 to 450 such eggs or the follicles are matured. ओके, तो उसका जो कैलकुलेशन है हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे आगे. ओके, नाउ तो इस दरम्यान क्योंकि बर्थ के समय मिलियंस के क्वांटिटी में फॉलिकल्स होते हैं. ओके, अल्टीमेटली जब फीमेल अटेंड करती है सेक्सुअल मैच्योरिटी, वो 1000 तक बच रहते हैं, और उसके बाद उसमें से कुछ ही 400 या 450, 400 to 450 फॉलिकल्स ही मैच्योर हो पाते हैं. इसका मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस सच फॉलिकल्स दे गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, डिजनरेटेड. तो ये प्रोसेस कंप्लीटली जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस होती है. एंड सच genetically programmed process of degeneration of that follicles, okay, right from the embryonic life, even though after the birth, and also during the sexual life of the female.
that follicles, such follicles, which shows a regular degeneration, never get matured. Such follicles are called as the atretic follicles or atresia. Atretic follicles or the atresia. And here, that phenomena is called as the follicular atresia. It is called as the follicular atresia. इस बात को सबसे पहले ठीक से समझना है. Okay? Now, I think you got it very well. Okay? तो हम आगे बढ़ते फिर. जैसे ही ओरीज में एग नेस्ट बन गए, जहां पर किसका क्लंपिंग है, किसका ग्रुपिज्म है, ग्रुप्स है उगोनिया और द एग मदर सेल्स का. सच उगोनिया और द एग मदर सेल्स which are forms are arranged in the form of groups, and whenever female attain the sexual maturity after the birth, such ultimately these groups of the ugonial cells show the further maturation. इन हर एक ग्रुप में से एक सेल जो जनरली सेंटर में होता है, it get matured further, enlarges in size and becomes the primary oocyte. वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी oocyte. तो such primary oocytes now get surrounded by remaining ugonial cells, and now such remaining ugonial cells are arranged in a single layer के फॉर्म में around the such centrally placed primary oocyte. When gets surrounded by a single layer of the such ugonial cell, now these ugonial cells are called as the follicular cells, and such structure is called as the follicle. अब ये कौन से follicle है? These are the primordial follicles, and these primordial follicles are found in the both ovaries of the such newborn female baby, female infant, in a millions of quantity. Okay. और उस मिलियंस में से कुछ थाउजेंड ही प्यूबर्टी तक बचे रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे? दे गेट डिसऑर्गेनाइज, डिजनरेटेड. ओके, दीज आर कॉल्ड एज द एट्रेटिक फॉलिकल्स. तो मिलियन में से कुछ थाउजेंड ही कब तक बचे रहेंगे? प्यूबर्टी कंडीशन यानी मेनाज तक. उस समय जब उनको स्टिमुलेशन मिलेगा, when there is a secretion of the first gonadotrophic hormone, you know, there is a onset of puberty both in case of the male and the female. It is stimulated by the secretion of the gonadotropin releasing hormones of the hypothalamus. Such GnRH acts on the adenohypophysis and stimulate the adenohypophysis to release the its first secretion, nothing but the FSH. तो पहला हार्मोन है FSH. हमने FSH के फंक्शन में स्टडी किया था. That FSH acts on the primordial follicles. एक ही नहीं, एक से ज्यादा प्राइमोर्डियल फॉलिकल पर एक्ट करता है, एंड कॉजेस इट्स फर्दर मैच्योरेशन. उसका मैच्योरेशन स्टार्ट होगा. दैट प्राइमरी oocyte enlarges in size. ओके, उसका मैच्योरेशन स्टार्ट होगा. एज वेल एज सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल जो सिंगल लेयर में अरेंज है, नाउ दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. ओके, and arrange in a several layers, and now these follicular cells which arrange in a several layers, now these are called as the granulosa cells. अभी उनको हम क्या बोलेंगे? granulosa cells. And these granulosa cells are the endocrine cells. अब ये endocrine cells है, and they start secreting the another hormone, nothing but the estrogen. तो हमने FSH का फंक्शन स्टडी किया था. FSH acts on the primordial follicles and convert them into the primary follicles. Okay, तो primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, and then finally fully matured or the Graafian follicle, which is ready for the rupturing, bursting to release the secondary oocyte and not the ovum. हम in general बोलते हैं, whenever the Graafian follicle get ruptured
एंड इट रिलीजेस दी ओहम, बट टेक्निकली ये रॉन्ग है, क्योंकि रिलीज ओहम नहीं होता है, इट इज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, इट इज नॉट गेट मैच्योर्ड कंप्लीटली, oogenesis कंप्लीट नहीं हुआ है, इट गेट अरेस्टेड at metaphase 2 stage. That metaphase 2 get completed or ultimately it is a meiosis 2. Okay, meiosis 2 का metaphase 2 उस समय उस फेज में अरेस्ट हो जाता है. Got it? उसका कंप्लीशन कब होगा? When there is an entry of sperm, अगर sperm अवेलेबल है तो ही उसका फर्दर मैच्योरेशन होगा और ओहम बनेगा. Okay, so whenever ultimately sperms are available, when there is an entry or the penetration of the sperm into that secondary oocyte, then it get completed into the ovum. तो हम उस stages of oogenesis में स्टडी करेंगे. ओके, तो टेक्निकली वो रॉन्ग है, लेकिन हम लैंग्वेज के कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं ओव्यूलेशन इज नथिंग बट द रप्चरिंग ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द ओहम, बट इट इज टेक्निकली रॉन्ग, इट इज नथिंग बट द सेकेंडरी oocyte. मैंने यहां पर लिखा है इट इज अ सेकेंडरी oocyte. ओके, तो भी बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एफएसएच, प्राइमर्डियल फॉलिकल्स दे स्टार्ट मैच्योरिंग एंड गेट मैच्योर्ड इनटू द प्राइमरी फॉलिकल. इस स्टेज में आ गए जहां पर सेंट्रली प्लेस क्वाइट एनलार्ज प्राइमरी oocyte now gets surrounded by means of a multiple layers of the cells. Now these are not called as the follicular cells, now these are called as the granulosa cells. Sorry. अभी ये granulosa cells now they becomes endocrine and start secreting the estrogen. वो किसका सिक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं? एस्ट्रोजन का. ओके, और जैसे जैसे इन फॉलिकल का मैच्योरेशन होता रहेगा, जैसे जैसे ग्रेनुलोसा सेल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एस्ट्रोजन लेवल भी हाई होता जाएगा, और ये हाई एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक भी शो करता है और नेगेटिव फीडबैक भी शो करता है. हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे. ओके, मीन्स whenever that follicle matured further, ultimately the estrogen level rises because of the increase in the quantity of the such granulosa cells. Okay, then when further maturation occurs, now see here that primary oocyte enlarges further, now gets surrounded by means of a zona pellucida, first protective layer. Okay, now here that zona pellucida, सबसे पहले तो सेकेंडरी oocyte, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके सराउंडिंग में zona pellucida है. Then the multiple layer of the granulosa cells can be seen here, and such granulosa cells they start rearranging in such a way that they start developing the small fluid filled space between them. एक उनके अंदर एक कैविटी डेवलप करना चालू कर देते हैं, जो कैविटी उन्हीं ग्रेनुलोसा सेल्स के सिक्रेशन के द्वारा फिलअप की गई है. यानी वहां पर फ्लूइड होगा, लिक्विड कंटेंट्स होंगे और साथ में एस्ट्रोजन भी होगा, एंड सच फ्लूइड फील्ड स्पेस इज कॉल्ड एज द एंट्रम. देन इट गेट्स सराउंडेड बाय मींस ऑफ ए वैस्कुलर लेयर, मैं बोल रहा हूं वैस्कुलर लेयर, एंड देन दी फाइब्रस लेयर. तो अल्टीमेटली नाउ दैट प्राइमरी फॉलिकल बिकम्स दी सेकेंडरी फॉलिकल, देन इट बिकम्स टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन बिकम्स फुल्ली मैच्योर्ड और दी ग्राफियन फॉलिकल. क्या बन गया अभी? फुल्ली मैच्योर्ड और दी ग्राफियन फॉलिकल. ओके, अभी अगर हम इस फुल्ली मैच्योर्ड और दी ग्राफियन फॉलिकल, इसका अगर स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसका सेपरेटली डायग्राम पूछ सकते हैं या इस पर नोट पूछ सकते हैं. ओके, तो सच फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल is called as the Graafian follicle also, because discovered by Regnier de Graaf. Regnier de Graaf's name of scientist, Graafian follicle. Okay, जहां पर क्या है अभी? Meiosis 1 get completed. That primary oocyte which is diploid now becomes the haploid single secondary oocyte. तो पहले क्या है? Secondary oocyte है,
उस सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है, सराउंडेड बाय मेसोफेज साइटोप्लाज्म, एंड दैट सेकेंडरी oocyte itself releasing jelly like layer around it. उसका तो खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? उलेमा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन or the plasmalemma of the secondary oocyte or the developing egg is called as the ulema. Okay. तो ये secondary oocyte ये first haploid cell है. वहां पर क्या था? Secondary spermatocyte is the first haploid cell in the process of spermatogenesis. In case of the oogenesis, secondary oocyte is the first haploid cell. And such first haploid cell, secondary oocyte, gets surrounded by means of its own jelly-like secretion called as the vitelline membrane. Such vitelline membrane gets surrounded by means of a double membranous covering, and it is protective and retained even though the early embryonic stage. ध्यान में रखना है उस लेयर को, which is a glycoprotein layer, and that glycoprotein layer is called as the zona पेलुसिडा. तो पहले क्या है? उलेमा है, उसके बाद वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, उसके बाद है जोना पेलुसिडा, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर. इसको ध्यान में रखना है ठीक से. ओके. देन इट गेट्स सराउंडेड बाय मींस ऑफ cells, nothing but the granulosa cells, but these granulosa cells they arrange in a radiating fashion, radiating, रेज जैसे अरेंज हुए, and they are glued together, stick together. Okay, stick together by means of a hyaluronic acid. And here these radiating cells which appears beautiful and called as the corona radiata. Corona radiata. Such corona radiata now gets surrounded by means of a large fluid filled cavity, and that large fluid filled cavity is called as the antrum, and that fluid is called as a liquor folliculi. Liquor means liquid, secreted by means of a follicular cells. Now these are the granulosa cells. Okay, liquor folliculi. And such antrum, which is a fluid filled cavity, gets surrounded by means of a such granulosa cells. मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा. तो क्या हुआ? सबसे पहले सेकेंडरी oocyte, उसके सराउंडिंग में है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके सराउंडिंग में है जोना पेलुसिडा, देन दी कोरोना रेडिएटा, देन दी एंट्रम, एंड देन दी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, मल्टीपल लेयर ऑफ दी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा. अभी एक एंड की तरफ चलते हैं जहां पर कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से कनेक्टेड है. दैट पैच ऑफ द सेल्स, दैट पैच ऑफ द सेल्स और द टिश्यू, जो टिश्यू किससे कनेक्ट करता है? जहां पर एंटम ब्रेक हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है, एंड कनेक्टिंग दिस कोरोना रेडिएटा विद द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, दैट पैच ऑफ द सेल्स कॉल्ड एज द डिस्कस प्रोलिगेरस और क्यूमुलस ओफेरस. डिस्कस प्रोलिगेरस और क्यूमुलस ओफेरस. ओके, ये सभी के नाम ध्यान में रखने हैं. ओके, डायग्राम ड्रॉ करना है ठीक से, इन सभी के नाम ध्यान में रखने हैं. उस ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर सेपरेटली पूछते हैं एग्जाम में. देन इट गेट्स सराउंडेड बाय मींस ऑफ ए एंडोक्राइन लेयर, secretory layer again. Okay, got it? And here that secretory layer which is vascular and glandular, blood supply, यहां पर मैंने कुछ blood vessels बताई है. Okay, having a secretory cells also. And now here such layer, it is called as a theca interna. Theca interna, जिस पर LH एक्ट करता है. ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे LH सर्ज. ऑलरेडी हमने स्टडी किया है इसके प्रीवियस वीडियो में. ओके, अब तक तो एस्ट्रोजन लेवल हाई है. दैट हाई लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन शोज द पॉजिटिव फीडबैक, एंड दिस सिक्रीशन ऑफ द नेक्स्ट हार्मोन दैट नथिंग बट द LH. ओके, LH सर्ज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है. अभी जब LH का इन्फ्लुएंस होगा इस थीका इंटरना पर, उसके इन्फ्लुएंस में थीका इंटरना हार्मोन सिक्रेट करता है एंड्रोजन. मैं क्या बोल रहा हूं? मेल हार्मोन. एंड हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फीमेल पार्ट, होल स्टडी कर रहे हैं. बट थीका इंटरना सिक्रेटिंग दी विच हार्मोन? एंड्रोजन. वो एंड्रोजन धीरे धीरे डिफ्यूज होता है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा में. ओके,
और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा उसको कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन आगे पढ़ेंगे हम और डिटेल, बिकॉज ऑफ द एरोमेटेज एंजाइम। ओके, तो in this way estrogen level is high and again finally surrounded by means of a such fibrous connective tissue layer and such fully formed, fully matured follicle now called as a Graafian follicle and which is ready for the rupturing। तो ऐसा फॉलिकल उस ओरी में नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर का होता है, 2.5। ओके, तो इस फॉलिकल जहां पर भी ऐसा फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल डेवलप होगा ओरी के अंदर, तो पुश करेगा वॉल ऑफ ओरी को एंड फॉर्मिंग दी कंपैरेटिवली सोलन रीजन ऑन द वॉल ऑफ दैट ओरी। दैट रीजन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ये स्टिग्मा इंडिकेशन है कि वहां पर उसके नीचे फुल्ली मैच्योर्ड या ग्राफियन फॉलिकल है। उसी स्टिग्मा रीजन से ही फिर ओरी रप्चर होती है और ओवुलेशन होगा। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में फॉलिकुलोजेनेसिस और oogenesis की कौन से स्टेज पर आए हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फुल्ली मैच्योर्ड और द ग्राफियन फॉलिकल। वॉच दिस वीडियो सेवरल टाइम्स टू क्लियर योर आइडियाज। नोट डाउन द डायग्राम, एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, और इन हार्मोन के एक्शन और होने वाले चेंजेस, ये सब हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, प्रेगनेंसी, पार्टुरेशन, ये सभी में हमको स्टडी करना है। इसके बारे में हमारी आइडिया क्लियर होनी चाहिए। ओके, अगर आपको ठीक से समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।